अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मैटरनल रिससिटेशन। ठीक है। डॉक्टर कुलसुम, मैं आपको सिनेरियो देती हूँ, आप मुझे परफॉर्म करके दिखाएं। ठीक है। डॉक्टर कुलसुम, कैमरा ऑन जी करें। जी मैम। ओके। यू आर द ऑन कॉल रजिस्ट्रार। पहले मैं देखूं आपका सही है, आप कैमरा सही है? वो आप दिखाएं मुझे, फुल नजर आ रहा है व्यू? स्टैटिक करूँ? जी जी मैम। ठीक है मैम। हाँ सही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा। You are the on-call registrar in the labor ward. A 32 years old woman, gravida 2 para 1, 38 weeks, 38 nahi, 30 weeks in labor, suddenly collapsed. Midwives have called you. What will be your immediate action? Please manage this patient. Okay. First, I will ensure. I will पहले ensure that she is safe. Then I will हम्म, even. ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करें। I will ensure that she is safe. Then I will assess the patient. I will take hello, Asia, Asia. Then I will, if she is not responding, then I will assist the patient by look, listen, and see for the carotid pulsation and for breathing. If there is no pulse and no breathing, then I will give emergency. I will please start emergency response system. Activate. Please bring AED, and then I will start the resuscitation. Uh, 30. Then breath. Then two breaths will be given. Then again compression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. If meanwhile AED is available, then I will attach the AED pads first from the right at the right side and other lateral to the left breast, and then we will assess that whether it is shockable or non-shockable. If it is shockable, then we will attach, remove all CTG electrodes and tear the seam, and shock will be given. Then after shock, then again we will start our CPR. Meanwhile, we will also be assessing the patient. If patient is responding and if there is spontaneous the patient is spontaneous breathing, then we will observe. Otherwise, we will continue our CPR. And if there's no and we will also do the also we will do the uterine displacement. I forgot this. We will do uterine. I will ask my assistant to do the uterine displacement visually, or we will put a wedge. We will put a wedge here so that there this will relieve the aorto cable compression, and then we will continue. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. And in this, if there is patient is not responding, we will also simultaneously review her history and records what was the cause, and if there is any magnesium, we will also consider the giving medicine like epinephrine. I will give epinephrine 0.01 ml per kg, 1 in 1000 solution 0.5 ml. We can repeat it 3 to 5 minutes. And if it is anaphylactic reaction, we will give chlorpheniramine, 10 mg hydrocortisone, 100 mg, and also we will consider intubation. But within 4 minutes, if patient is not revived, we will do perimortem cesarean section. Perimortem cesarean section will be done at the stator where the patient is. We will leave only scalpel and 2 clamp cords, 2 cord clamping cords. But if after doing perimortem cesarean section, it should be completed at 5 minutes and patient is revived, then we will shift the patient to appropriate setting like operation theater, and we will observe further, and we will record our vitals and do incident reporting, and we will do the documentation, whole scenario, and debrief the patient in attendant, and we will do incident reporting and duty of control, and duty of control and drills will be done to record the whole scene. मैम हो गया? हेलो हेलो हाँ डॉक्टर कलसुम, हेलो आपकी रिससिटेशन से ना पेशेंट मर गई। जी मैम, वही मैं थोड़ा हो गई, कंफ्यूज हो गई फिर से। क्या 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 मिस्टेक्स की हैं आपने? एक तो मैडम शुरू से ही मुझे वो करना था, डिस्प्लेसमेंट मैनुअल यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट जो थी वो मुझे करनी थी, और जो है और एक तो मैं ये भूल गई असेस हम्म, करके कार्ड, और जो और आप फिर घर अर्ली इंट्यूबेशन करनी थी। चले अर्ली इंट्यूबेशन ना करती, रिससिटेशन जो कर रही थी आप, सीपीआर कर रही थी, वो मेथड सही था? मैडम इससे ही देखा था कि दोनों जो स्ट्रेट रखना है, इनको आर्म्स को एक दूसरे के ऊपर और स्ट्रेट रखना है, और उठा देना है। एक चेस्ट कंप्रेस किया, फिर उठा दिया ऊपर, प्लेन से हट गई, फिर नीचे किया, मतलब रखा। ये मैंने आपको बात नियोनेटल हाँ नहीं रिससिटेशन में भी समझाई। सही सही नहीं, हैंड्स वहीं रखने थे मुझे, ठीक है। और हाथों हैंड्स को नहीं उठाने। और हाथों को बिल्कुल, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट नहीं रखना। जैसे सीपीआर करते हैं, मतलब फिंगर्स को अंदर पूरा जो इनर साइड है ना, उधर वो करना है। वो क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं इसको, उर्दू में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऊपर नहीं रखना, जैसे सीपीआर की तरह करना है। अब एक तो वो कैमरा आपकी वो पूरी वो हो रहा है, ब्लर हो रही है। इसे इस तरह से नहीं रखना, हाँ, नहीं ऐसे। नहीं नहीं, ये तो फिस्ट नहीं बनानी, अंदर वो फिंगर्स को ना अंदर इंटरलेस्ट कर लें। अच्छा ये कर दो, यूं ओहो, नहीं 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 नहीं। कोई अगर वीडियो ऑन करके हमें बताएगा कि कैसे करेंगे रिससिटेशन? वो डॉक्टर दिखा रही है। जी मैम जी। ठीक है, समझ आ गई? जी
ठीक कौन है। दिखा रहा है? आ नहीं रही। डॉक्टर जिमिल दोबारा से करके दिखाएं। वीडियो नहीं आ रही मेरे पास तो। ये अभी आएगी। अभी नजर आया? नहीं, नहीं आ रही। हाँ आए। डॉक्टर कुलसुम आप अपनी वीडियो ऑफ करें, फिर आपको नजर आएगी। अब नजर आई है? बाकियों को नजर आ रही है? हम्म। नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके। थैंक यू डॉक्टर जिमिल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कुलसुम दोबारा से आ जाए, वीडियो मैम ऑन कर। रिकॉर्डिंग में। हाँ। आपको क्यों हाँ, नजर? क्योंकि मेरे पास नहीं आ रही। चले ठीक है, आप आ जाए, नजर आ गई है बाकियों को, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आ जी जाएगी। मैम, ठीक। जी जी मैम। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप वीडियो ऑन करें तो मैं सिखाऊं ना? जी जी मैम, मैंने ऑन की है। अच्छा, फिर हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैंने तो ऑन की है यहाँ से वीडियो। हम्म, हेलो। जी हाँ, आ गई। आ गए। हम्म। अच्छा डॉक्टर कुलसुम, देखे फिर, जैसे ही आप गई ना, पहले आपने जैसे ना वेग बताया, समझ नहीं आया कि आप देख रही हैं। लुक, लिसन, फील। देखना किसको है, फील किसको करना है, लिसन किसको करना है, वो बताएं। मैम देखना, लुक एट द चेस्ट फॉर द राइजिंग ऑफ ब्रीथिंग मूवमेंट्स, हम्म। एंड लिसन फॉर इन ब्रीथिंग साउंड्स, एंड फील फॉर द पल्स। हम्म। सो आई विल, और जो सीन इज सेफ या क्लियर है, तो वो कहाँ पर बोलना है, वो आपको पता है कहाँ पर बोलना है? अगर स्ट्रीट में हो तो। हाँ, स्ट्रीट में हो, मॉल में हो, कहीं और। आपको मिडवाइफ ने बुलाया है, वहां पर किस चीज का सीन देख रही हैं? ये एग्जामिनर इतना माइंड करते हैं, तो वहां पर नहीं देखना। क्योंकि आपके तो लेबर रूम है ना, वहां पर कौन से गुंडे आ रहे हैं? ठीक है। तो सही, ठीक है मैम। वहां पर सीन इज सेफ नहीं बोलना, ठीक है। आप थोड़ा सा अपनी अक्ल यूज करें, ठीक है। फिर आई विल चेक द रेस्पॉन्स बाय टैप हर शोल्डर। हेलो, हेलो, आर यू ओके, आर यू ओके, या हेलो सलमा, अगर नाम मेंशन है उसमें सिनेरियो में। हेलो सलमा, आप मुझे सुन रही हैं? सलमा, हेलो। ऐसे बोलना है। ऐसे सो कर नहीं बोलना, ठीक है। उधर परफॉर्म करना है, ऐसे नहीं कि पूरा ठीक। एग्जामिनेशन हॉल गूंजने लग जाए। ऐसे भी नहीं, लेकिन ऐसे, हेलो, हेलो, आर यू ओके, हेलो सलमा, आप मुझे सुन रही हैं? ठीक। देर इज नो रिस्पॉन्स, इफ नो रिस्पॉन्स कॉल फॉर हेल्प। हेलो, जो है, मीन वाइल आई विल लुक, लिसन एंड फील फॉर द पल्स ब्रीदिंग फॉर 5 to 10 seconds। अब आपके हाथ कैरोटिड पर ही हो, ठीक है, और आप उसके देख रही हैं, और कान लगाकर सुन रही हैं, ठीक है, समझ रही हैं? ठीक। आपका वो हो, जी जी मैम। कैरोटिड पल्स पे हाथ हो। देखना आपको चेस्ट पर है, सुनना आपको कान से नाक पर है, जो थोड़ा ऐसे नीचे करके। तो आपको लगे कि वाकई आप क्या कर ठीक। रही हैं, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं कि बोलना है वर्बली और बस। उसके बाद जो है, ओके, अब आपकी वेन, जो है, मेंबर्स अराइव्ड या माय कुलीग्स अराइव्ड, आई विल एक्टिवेट, आई विल आस्क देम टू एक्टिवेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है, टू गेट एन एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। वो बोलना पूरा नहीं है, एईडी, प्लीज गेट एन एईडी, ये भी बोलना है ऐसे। ठीक। नो ब्रीदिंग, नो ठीक। पल्स, नो ब्रीदिंग, नो पल्स। आई विल स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन, 1 2 3 4 5 10 11 24 30, ऐसे करना है। आपको पूरा बोलना नहीं है कि 5 मिनट आप छोड़ दें, 30 तक हम बोले। आप उधर बता दें कि 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीथ्स हो आपकी, ठीक। मतलब ठीक है। एग्जाम में हमें 30 तक पूरा नहीं। नहीं नहीं, कंप्रेशन। पूरा नहीं, पूरा नहीं करना, पूरा नहीं करना, क्योंकि आपके क्वेश्चंस रहते हैं ना, आपके पीछे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ऐसे करना है कि आपने 30 तक ठीक। पूरा किया है। 1 2 3 4 8 9, फिर 20 24 30, फिर आपने उसका 2 ब्रीथ,
फिर आप उधर के, अगर आप अकेली हैं तो वन हैंड टेक्निक है, या टू अगर दूसरा कोई है आपका सीपीआर करने है तो, और फिर टर्न करना है। अगर आपके पास दूसरा, अगर मैडम ने कहा चले मैं उसको कर रही हूँ, खुद ही ब्रीथ दे ब्रेड रही हूँ, दे। ब्रीथ दे रही हूँ, तो आप कहेंगे मैडम आप मेरी हेल्प करेंगी। वो अगर मैडम ने आपकी हेल्प की, क्योंकि करती है वहां पर एग्जामिनर, फिर आप करेंगे, आप अच्छा। 1 मिनट के बाद ना आप थक जाएंगी, फिर आप टर्न टर्न वाइज 2 मिनट के बाद आप टर्न करेंगे, आप उधर आ जाएंगे ब्रीदिंग वाले उस पे, उसको मैडम को कहेंगे कि मैं मैडम टर्न करूंगी। करना नहीं है, लेकिन आप बताना है कि चेंज करेंगे पोजीशन आपकी। ठीक है, आई विल चेंज द पोजीशन, क्योंकि आप, तो मैम ये चीज बोलते जाना है कि जो है ना 30 कंप्रेशन दे दी मैडम, आई विल चेंज माय पोजीशन, हाँ आफ्टर 2 मिनट, आई विल गिव हाँ माय असिस्टेंट विल कंप्रेशन। हाँ, आई कैन चेंज माई पोजीशन आफ्टर 2 मिनट, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाता है ना बंदा कंप्रेस कर करके। ठीक है, फिर आपसे फिर ठीक है। जो है, I will start the chest compression, and chest compression should be higher than the usual CPR। अच्छा, उस दौरान ना आपको ये याद रखना है कि वेज अंडर राइट बटक, अगर राइट बटक पे वेज दे रही हैं तो फिर आप मैनुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगी। अगर मैनुअल डिस्प्लेसमेंट कर रही हैं हाँ, तो फिर आप वो नीचे से वेज अंडर राइट बटक नहीं देंगी, एओर्टोकेवल कंप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये ठीक सुनती जाए, फिर हमें एंड में करके दिखाना आप। और भी ठीक कोई मैम, अगर ठीक है। परफॉर्म, और भी कोई परफॉर्म करना चाहे तो डॉक्टर जिमिल कोई भी करना चाहे कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये किया, पहले ही आते ही आई विल आस्क माय असिस्टेंट टू मैन्युअली डिस्प्लेस द यूट्रस टू रिलीव द एओर्टोकेवल कंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद जो है इंट्यूबेशन अर्ली बाय द स्मॉलर, वो ईटीटी वाला, आई विल स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स एपिनेफ्रिन 1 मिलीग्राम एवरी 3 to 5 minutes, देन 20 ml नॉर्मल सलाइन बोलस, एलिवेट हैंड अबव द डायफ्राम, उसका हैंड एलिवेट करना है अबव द डायफ्राम, जैसे जो आईवी लाइन है ना वो इजीली वो उसको पहुंच जाए। आफ्टर 3 मिनट वी कीप इंस्ट्रूमेंट रेडी फॉर द पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन। आपको ये नाम लेने हैं, पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन शुड बी डन in 5 minutes, yeah, especially after 4 minutes. I will call the pediatrician, वो भी आपने कुलीग्स को बुला लिया आपने। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग स्कैल्पेल एंड 2 कॉर्ड क्लेम्स होने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि ये आप कहाँ पर करेंगी सिजेरियन, तो फिर आप क्या बोलेंगी? At the place where the patient is, if it is in labor room, so I will start in labor room. मतलब जो है, We अच्छा don't need to move the patient. हाँ बेटर, वो नहीं करना। ठीक है, और ये किसके इंटरेस्ट में होता है, बच्चे के इंटरेस्ट में होता है या मैटरनल इंटरेस्ट में होता है? ये जो आप उसको ये सुप्रीम maternal interest. कट कौन So सा to चाहिए? improve the circulation, What will be your ma'am, what will be your incision? incision, like I am more familiar with transverse incision, so I will go for transverse. If anyone is more familiar with midline vertical skin incision and classical uterine incision, so can go for this. अच्छा, फिब्रिलेटर कहाँ है, उसके पेड कहाँ अटैच करेंगी? Paid one on the right. करके दिखाए, वहां पर क्या अटैच करके कहेंगे दिखाए, पिल्लो पर करके दिखाए। जी। मैम एक ये राइट साइड है, राइट ब्रेस्ट के यहाँ पे, राइट शोल्डर के साइड यहाँ पे, और ये इसको, लेफ्ट ब्रेस्ट के लेटरल। हाँ एक होगा एंटीरियो लेटरल, एंटीरियो लेटरल, वो जो पहले वाला कर रही थी वो एंटीरियो लेटरल, और जो दूसरा है लेटरल पेड अंडर द ब्रेस्ट टिश्यू, ये एंटीरियो लेटरल होगा, और दूसरा ब्रेस्ट के अंडर, अंडर द ब्रेस्ट टिश्यू। हाँ ऐसे। हाँ, लेफ्ट ब्रेस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी, अच्छा उसके बाद होता है कि आपका जो है हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन कैसे होगी, कि फर्म बैकबोर्ड होगा, सुपाइन होगी, और अलो चेस्ट, कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल, मिनिमाइज इंटरप्शन, जैसे आप बात कर, और मिनिमाइज चेस्ट इंटरप्शन, वो इंटरप्शन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बात कर रही हैं फिर छोड़ दिया, फिर कर रही हैं फिर छोड़ दिया, फिर आप किसी को बुला रही हैं तो फिर उसको हाथ निकाल दिया, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंटरप्शन कम से कम होनी चाहिए।
ठीक है। और फिर व्हाट आर द जो है कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मैटरनल कोलैप्स, रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ मैटरनल कोलैप्स? It is hypovolemia, hypoxia, and hyponatremia, hyperkalemia, and thromboembolism, and tension pneumothorax, and cardiac tamponade, and toxicity, and eclampsia and preeclampsia. So you can remember it by mnemonic. फोर टीज होते 4H, हैं, 4H एंड इक्लेम्शिया, ई होता है एक। द से याद करना है, THE, हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया या हाइपोकेलिमिया, हाइपोनेट्रीमिया, और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, टॉक्सिसिटी, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेम्पोनाट और इक्लेम्शिया और प्रीक्लेम्शिया, ये होते हैं। ठीक है, 4T, 4H और फिर एक इक्लेम्शिया या प्रीक्लेम्शिया। ठीक है, फिर आप कॉल किसको करेंगी? इफ नो रिस्पांस कॉल फॉर हेल्प, तो कॉल whom you will call for the help? किसको बुलाएंगी? Senior, if I am like if we are in the maternity unit with tertiary care, like so I will call senior obstetrician, senior anesthetist, and senior staff midwife, and the neonatologist. अच्छा, when you will stop the resuscitation? Stop resuscitation should be done in consultation with multidisciplinary team. If there is no response of should be done after discussion with multidisciplinary team, and with counseling with attendant after ma'am 5 minutes, नहीं, because there is a break is इसकी 5 to 6 minutes. इसका कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। आप 10 से 15 मिनट उसको रिससिटेशन करेंगी, उसके बाद आपका जॉइंट जो है सब मिलकर एक असेसमेंट करेंगे कि ये पेशेंट अलाइव है या नहीं है। अगर पेशेंट अलाइव है तो क्या करेंगे, अगर डेथ हो डिक्लेयर हो गई है तो फिर आप डेथ डिक्लेयर कर देंगे और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, डीप ब्रीफ करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, डीप ब्रीफ, ड्यूटी ऑफ कंडोर, डिस्कशन और फिर ड्रिल्स, ये वो 7 Ds बता दीजिएगा। ठीक है, और अगर पेशेंट अलाइव है तो फिर आफ्टर माय रिससिटेशन, इफ Alive? पेशेंट, हाँ पेशेंट इज अलाइव, तो देन आई विल कंटिन्यू ट्रीटमेंट। आप I अंडरलाइन will do evaluation. जी. आप कंटिन्यू करेंगी ट्रीटमेंट। अंडरलाइन कॉज ऑफ कोलेप्स, ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएट क्लिनिकल केयर सेटिंग, जैसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट, और ठीक मैम. इंश्योर एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, डीब्रीफ द पेशेंट। ठीक है, एंड रिलेटिव पेशेंट डिड नॉट रेस्पॉन्ड, वी कैन स्टॉप CPR। हाँ, लेकिन वो CPR स्टॉप ऐसे नहीं करना जब तक आपकी जॉइंट वो ना बैठे, MDT ना बैठे। अकेले आपको कुछ नहीं करना है कि मैंने उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया, ये सिर्फ बताना है आपको कि मैं अकेले नहीं करूंगी स्टॉप। डॉक्टर कलसुम, अब सारा जो भी मैंने बताया है वो आप करके दिखाएं। जी मैम. Okay. I will start. Hello, Asya. You listen me? You listen me? Since then, I will look for breathing and feel for pulse for 5 to 10 seconds. If no response, no breathing, then I will please get AED, activate emergency response system, and I will start the CP chest compression. 1, 2, oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 24, 30. Then I will give. Then I will ask my assistant to give 2 breaths, and then again we'll start the compressions. 1, 2, 3, 20, 22, 30. And after 2 minutes, we will change the position. I will come at the side of ventilation, and my assistant will do CPR. And meanwhile, we will maintain 2 whiteboard IV cannulas, and I again forward. मैम फिर भूल गई वो वेज रखना। और यार, अच्छा डिस्प्लेस कैसे करेंगी? अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपका कुलीग आ जाता है तो आप कैसे मैनुअल डिस्प्लेस करेंगी उसको, यूट्रस को? मैनुअल डिस्प्लेसमेंट मैम? हाँ,
मैन्युअली तो मैम ये जैसे यूट्रस है ना, इसको इस तरह प्रिंट कर देंगे, या फिर हम पेज रख देंगे राइट बटन के नीचे। आपके साथ खड़ा होगा असिस्टेंट या उधर उधर से उस साइड खड़ा होगा? मेरा असिस्टेंट एक तो यहाँ पे खड़ा होगा, जो ब्रेथ देगा वो हेड साइड पे, और जो डिस्प्लेस करेगा वो लेफ्ट साइड पे, और हम्म। राइट साइड पे। हम्म। ठीक है। बार करूँ मैम एक बार? दोबा- दोबारा करें। ओके। अच्छा, कोई और आई करना विल चाहेगा? डॉक्टर डॉक्टर जमील, आप करना चाहेंगी? कर रही है वो। पता नहीं, जवाब दे तो पता चले। डॉक्टर जमील, आप कर रही हैं? कोई और करना चाहे तो कर सकता है। जो करेगा उसकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर भले मिस्टेक्स हो, वहां पर एग्जाम में वो क्लियर हो जाएगा। 100% इस स्टेशन में पास हाँ होगा। डॉक्टर कलसुम, देखें, आपने 2 बार किया, 2 बार ही आपने मिस्टेक की है। अब आपको याद रह हाँ मैम जाएगा। सही कह रही हैं। तो ये प्रैक्टिस से ही जी होता है। बंदा इंशाल्लाह। जितनी प्रैक्टिस करता है ना, उतना ही इंसान को याद रह जाता है, देखने से और सुनने से। ये वीडियोस और ये हर जगह है। ये मेरा मकसद क्लास लेने का ये था हाँ कि आप लोगों की तो प्रैक्टिस हो। मैडम पता वर नहीं कितनी बार वीडियो सुनी है, फिर किया है, मगर जो है ना टीचर के सामने करने से ना जो एग्जाम वाली फीलिंग आती है ना, वो अभी आ रही है। हाँ, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यार क्लासेस होती है। जो है, मुझे कोई फायदा नहीं है इससे। और आप लोग जितना परफॉर्म करेंगे, आप लोगों को फायदा होगा। कोई भी करना चाहे तो परफॉर्म कर सकता है। डॉक्टर आमना, आप करेंगी? डॉक्टर आमना, डॉक्टर जिमिल, आप लोगों में से कोई भी करना चाहे तो वीडियो ऑन करके आप कर सकते हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। आईएमएम की कोई कैंडिडेट हो तो वो कर ले। उनका तो एग्जाम है अभी। चले डॉक्टर कलसुम, मुझे 3 मिनट में पूरी रिससिटेशन करके दिखाएं। Hello, hello. Are you listening me, Asia? Hello. Then I will assess the look, feel, and listen for within 5 to 10 seconds. Then no response. Then I will do manual. I will keep the page under the right button so that there's prime displacement. I will stop. Please get AED, activate emergency response system. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30. Give 2 breaths. Then again, meanwhile, I will ask my assistant maintain whiteboard IV canvas, give IV fluids, and continue CPR. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 30. 2 breaths, and if there's no response, we will go for early intubation. Drugs will be given. 0.01 ml per kg epinephrine. We can repeat it 3 to 5 minutes. Look for the cause. If there's magnesium toxicity, we can give calcium gluconate. And if no response, we will start perimortem cesarean section within 4 minutes, and it should be completed at 5 minutes. And CPR will be continued. We will change the position after 2 minutes. And then if patient is recovered, we shift the patient to HD intensive care unit. We will do monitoring, and we will document the whole incident, and will debrief the patient and attendants, and will do the incident report, duty of control, and we will arrange the drills. डॉक्टर जिमिल आ जाएं। क्या हुआ, रिकॉर्ड होता है तो क्या होता है? मास्क पहन ले, मास्क पहन ले, कोई मसला नहीं है। कौन है? हाँ मास्क पहन के कर लें, कोई करना चाहते हैं। कौन देखेगा हमें यार? डॉक्टरों को कोई नहीं देखता। और वैसे भी मैम इतना वो, ये तो एजुकेशनल है, इसमें तो इतना हाँ, वो नहीं है। एजुकेशनल है, कोई नहीं देखता किसको। मेरे हस्बैंड इतने सख्त हैं, वो मैं फिर भी वीडियो पर आ जाती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चैनल कोई खोलते ही नहीं है यार। कौन पढ़ाई वाला चैनल खोल के बैठा होगा? ठीक है। सो एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो है,
I will check the response by tap her shoulder and call out her name. Fozia, hello, hello, are you okay? If there is no response, I will immediately call for help. I will call, फिर उनके नाम लेने हैं जो भी, ठीक है. But before CPR, uterine displacement, I will ask my assistant to displace the uterus. Meanwhile, I will look, listen, and feel for the pulse, breathing for 5 to 10 seconds. And I will ask my colleague to activate emergency response system. Please get an AED. If no breathing, no pulse, I will start the chest compression, and chest compression should be higher level than the usual CPR, and force of contraction should be more in ratio of 30 into 10 raised by 1, 2, 3, 4, ऐसे करके, ठीक है. I will call anesthetist, intubation early by the smaller size of ETT, small laryngoscope, simultaneously attach ECG. ठीक है. अगर AED है तो फिर आप AED अगर उधर पड़ी हो ना तो जरूर AED अटैच करना है आपको, कि मैं AED अटैच करूंगी, और जब वो शॉकेबल बोलेगा तो जो है एरिया वो क्लियर करूंगी, वो पूरा करके दिखाना है, ठीक है. फिर IV फ्लूइड्स देने. आफ्टर 3 मिनट्स वी कीप इंस्ट्रूमेंट रेडी फॉर द पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन शुड बी डन इन 5 मिनट या आफ्टर 4 मिनट, जिस टाइम भी कर लें आप, ठीक है. उस पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होने जी चाहिए. आपसे पूछा जाएगा कौन से इंस्ट्रूमेंट, तो स्कैल्पेल, 2 कॉर्ड क्लैम्प्स, रिट्रैक्टर और स्टेराइल स्पंजेस. ओपन, आई विल ओपन द एब्डोमेन विद द वर्टिकल इंसिशन और जो है फेनेशियल इंसिशन. टेक बेबी आउट, clamp cut the cord, hand over baby to the neonatologist, keep the placenta in situ, pack with the sponges, continue CPR till mother revived. After we'll take mother to OT, stitch the uterus and abdomen there, document debrief the attendant and about all the events. ठीक है. मैडम अच्छा, ये प्लेसेंटा इन सिटू रखेंगे जब तक रिवाइव हो? हाँ, जब तक रिवाइव हो, फिर जैसे ही वो रिवाइव होने शुरू हो जाएगी ना तो फिर उसको लेकर जाएंगे OT में स्टिच करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा उधर, ठीक है. और मिड लाइन भी दे सकते हैं आप इसको, फेनिसियल भी दे सकते हैं, क्योंकि मिड लाइन से अगर कोई फेमिलियर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उधर कोशिश करता रहे कि मैं मिड लाइन से ही उसको निकालूं, तो आप फेनिसियल भी दे सकती हैं, कोई मसला नहीं है उसका, ठीक है. क्योंकि आपको बस बेबी आउट करना है और उसको CPR जैसे आपका ज्यादा इफेक्टिव हो. ये जो अच्छा मैडम, ये अस्सलाम एक वालेकुम बात, मैम। वालेकुम ये सलाम. जैसे मैंने कंप्रे एक ये जो कंप्रेशन हम दे रहे हैं 30 कंप्रेशन दी, ठीक है, फिर 2 ब्रेथ दिए, ठीक है, उसके बाद में इस तरह से एक जो ये पहला साइकिल किया, इसके बाद ही मैं बोल दूं कि ठीक है बस AED आ गया, AED लगा दें? हाँ, आप अगर 8 आपने बोल दिया है ना पहले के, प्लीज बुशरा फला फला को भी बोल दो, प्लीज गेट एन ED, तो ओके, AED इज रिसीव्ड नाउ, आई विल अटैच द पेड, फिर आप अटैच कर दें पेड, माय कोलीग विल अटैच द पेड, ठीक है, उस पेड रखते, और इफ जो है वो शॉकेबल होगा तो फिर मैं हम क्लियर से जो है कर देंगे उसको एरिया को, और फिर आप हाँ. शॉक दे देंगे? And resume मैम CPR, ये and I will resume CPR immediately after the shock. पेरीमोर्टम के बाद अगर रिवाइव ना हो तो कब तक CPR करना है? डियर, वो मैंने बताया है कि आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, कोई भी टाइम पीरियड लिखा नहीं हुआ, जॉइंटली जो है MDT इन्वॉल्व होगी, उसमें सारे आपके सीनियर्स इन्वॉल्व होंगे, उनको जॉइंटली डिसीजन कर लेना होगा कि हम अब क्या करें. लेकिन आपको मैम ये जो फ्लूइड है, हम्म मैम ये थोड़ा बता दें, वो फिर पूछते हैं ना उधर के कौन सी डोज कितनी देनी है, ये जो IV इमरजेंसी ड्रग्स जो दे रहे हैं. आप सिंपली एपिनेफ्रिन का बताइएगा, वो डिपेंड करता है कि उसको जो है वो क्या, जैसे एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया, या अगर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है तो कैल्शियम वो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है, या उसको एरिथमिया है तो क्या देंगे, वो अकॉर्डिंग टू उसके, या एनेस्थेसिया के बाद वो हो गई है, कोलैप्स हो गई है तो इंट्रालिपिड देते हैं, तो ऐसे आपका डिपेंड करता है. लेकिन आप बताइएगा एपिनेफ्रिन 1 मिलीग्राम एवरी 3 to 5 मिनट, देन 20 ml नॉर्मल सलाइन बोलस, सिर्फ 20 ml नॉर्मल सलाइन बोलस दे देते हैं उसको. एपिनेफ्रिन 1 अच्छा मिलीग्राम एवरी 3 to 5 मिनट, और फिर 20 ml नॉर्मल सलाइन बोलस में, ठीक है. या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि एड्रीनलिन 0.01 मिलीग्राम पर किलोग्राम एवरी 3 to 5 मिनट ड्यूरिंग CPR, ठीक है. जी.
और अमाइडोरॉन वो भी दे सकते हैं अगर एरिथमियाज वगैरह हैं, लेकिन अमाइडोरॉन जो है अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो उसमें अवॉइड किया जाता है ज्यादातर। और कैल्शियम ग्लूकोनेट अगर वो उसका एक्लेम्शिया वाली है और वो एक्लेम्शिया की टॉक्सिसिटी की वजह से, वो उसकी मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी की वजह से है, तो फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट वो 10 ml इन 10% देंगे। एंटीडोट है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का, शुड बी गिवन स्लोली आईवी इंजेक्शन। मैम ठीक है। और ओके मैम, ये 20 ml नॉर्मल सलाइन बोलस तो बहुत कम नहीं है, इसको फिर बाद में क्रिस्टलॉइड्स देंगे ना इस बोलस हाँ, के बाद? वो तो रिहाइड्रेट करेंगे ना। अभी तो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है ना, उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, जब तक ठीक है, बेबी सही आउट हो है। और वो हो। फिर अब पेशेंट रिवाइव हो जाएगी ना, तो फिर तो आप वो आपका मीनवाइल रिससिटेशन चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है रिससिटेशन जो हो रही है ना वो आपकी चलती रहे, वो जो सीबी वो आईवी ये वो सारी मेंटेन होती रहेंगी उसकी। आप सीपीआर कर रही हैं, मेन चीज है सीपीआर देखना आपका, कि आपकी जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, और आपका जो हाथ है ना वो उठा ना दे उधर एग्जाम में। ये याद रखना कि चेस्ट रिकॉइल का उसको टाइम देना है, लेकिन बिल्कुल ही हाथ उठाने नहीं है, ना नियोनेटल में ना मेटरनल में। ठीक है, आप लोग सीधे सीधे स्ट्रेट आर्म्स रखिएगा। और सीपीआर, अच्छा जो पाँव है ना उसको भी ऊपर नहीं करना, वो बिल्कुल फ्लोर पर चिपके रहें। ऐसे नहीं कि आप उसके लिए उसको कंप्रेस करने के लिए ना पाँव उठाओ। वहां पर जो एग्जाम में जी। होगा ना, वो टेबल आपकी बिल्कुल लेवल पर होगी। आप फजूल में नहीं उठाना जो है पाँव। वो हर चीज आपकी एक्टिविटी नोट करते हैं। आपकी आंख बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर अगर लेवल हाई होती है ना, तो आप मैडम को कहें मेरा कद जैसे छोटा है तो मैं नीचे से फुट स्टेप रखूंगी या कुछ रखूंगी, ताकि मेरी इफेक्टिव हो, या किसी और को बुलाऊंगी जो इफेक्टिव रिससिटेशन दे। ये पॉइंट्स बोलनी है वहां पर आपको, ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि आप लोगों को पता है कि अगर आप इफेक्टिव नहीं कर रहे रिससिटेशन तो फिर फायदा ही नहीं है ना, कंप्रेस हो ही नहीं रही। 1/3 मैम एपी डायमीटर, वो जो इसका अपना भी एक है ना, डेप्थ नहीं ऑफ सीपीआर जो होती है। नहीं, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आपका वो आर्म से कैसे स्ट्रेट होंगी? अगर आपका कद छोटा है या कद बड़ा है, मतलब कद बड़ा है तो ठीक है, अगर छोटा है तो आपके आर्म्स तो स्ट्रेट नहीं होंगी ना, तो आपकी हम्म। इफेक्टिव वेंटिलेशन नहीं होगी। तो आप फुट स्टेप रखेंगी, या जो है किसी और को, मतलब अगर कोई और मौजूद है वो जो कर सकता है, आपका टीम होती है ना मैटरनल लेबर रूम में, तो टीम मौजूद होती है बाकी वहां पर। और पेशेंट को मूव नहीं करना, जहां पर है वहीं पर स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। सही है मैम। और कोई करना चाहे तो मैं दोबारा से ये भेजूं लिंक, अगर कोई नहीं करना चाहता प्रैक्टिस तो बस फिर स्टॉप कर दे। चले रिकॉर्डिंग